ٹھیک ہے جی. یوٹیوب ویورز آپ کو خوش آمدید. پی ایم ایل این یو ٹی وی میں آج ہمارے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ لاہور کی یونیورسٹیوں سے، پاکستان کی یونیورسٹیوں سے ان کا تعلق ہے. سب سے پہلے ہمارے یو ای ٹی کے الیکٹریکل انجینئر ہیں نوید جویا صاحب ہیں. اس کے بعد سندھ یونیورسٹی سے جنہوں نے ماسٹر پولیٹیکل سائنس کیا ہے جناب شہزاد مغل صاحب ہیں. پنجاب یونیورسٹی کے ہمارے پاس ایم اے پولیٹیکل سائنس جنہوں نے کیا جودت مسعود صاحب، اور بزنس کمیونٹی کی طرف سے جناب میاں شاہد صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. یہ لاہور کے گرامی بزنس مین ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یوتھ کی نظر میں میاں نواز شریف ہی اس ملک کے لیے ضروری ہیں یا کوئی اور بھی ایسا ہے جو کہ اس ملک کو بچا سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، موجودہ گورنمنٹ یا اس سے پہلے کی گورنمنٹ 12 اکتوبر 99 کے بعد کے جو حالات اس میں، اور آج کیا سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو اس ملک کے لیے ضروری ہے؟ جی جناب نوید جویا صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی طرف سے، یوتھ ونگ کی طرف سے، کہ آپ نے ہمیں دعوت دی اور ہمیں موقع دیا کہ ہم لوگ آگے کچھ نہ کچھ اپنا بتا سکیں لوگوں کو. میرا تعلق جو ہے بیسیکلی اسٹوڈنٹ لائف سے ہے، اور میں یو ای ٹی سے انجینئرنگ یونیورسٹی سے میں نے بی ایس سی الیکٹریکل انجینئرنگ کی لاسٹ ایئر. اور پچھلے کوئی چند عرصہ سے ہمارے دوست، ہمارے ہاسٹل کے جو لوگ تھے، ان لوگوں نے مل کے ہم لوگوں نے دیکھا کہ پاکستان میں آج کل جو ان سے سیاسی حالات جو سے وہ کس طرف جا رہے ہیں. تو سوچا کیوں نہ دوسری پارٹیوں کی بھی جلسوں کو اٹینڈ کیا جائے. تو ہم لوگوں نے پی ٹی آئی کے جلسے کو، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف، جن کے سے چیئرمین وہ عمران خان صاحب ہیں، تو کافی اچھی انٹرٹینمنٹ انہوں نے ہمیں پرووائڈ کی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیزیں کرتا چلوں کہ جو حالات ہیں موجودہ یونیورسٹیوں کے یا گھروں کے، تو اسٹوڈنٹ تنگ آ کے کچھ نہ کچھ انٹرٹینمنٹ چاہتے ہیں. تو ان کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ جو سے گئے ضرور جلسے میں، ہم نے اٹینڈ کیا مینار پاکستان میں. عوام بھی بہت تھی، لیکن اس کے ساتھ ہم لوگ اگر یہ دیکھیں کہ عوام نے وہاں پہ کیا انجوائمنٹ کی، تو میں تو صرف یہ دیکھتا ہوں لوگ ڈھول کی تھاپ پہ بھنگڑا ڈالتے تھے، یا وہاں پہ جو سنگر آئے ہوئے تھے ان کو انجوائمنٹ، ان کی انجوائمنٹ کے لیے وہ آئے ہوئے تھے لوگ. لاہوریوں کو تو ویسے بھی ہلا گلا چاہیے ہوتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میوزک بجا کے اور اس قسم کے انٹرٹینمنٹ لے کے اس ملک کے لیے کوئی نیکی ہو سکتی ہے یا اس ملک کے بچانے میں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو سے ایونٹ آرگنائز تو دوسرے کمپنیز بھی کرتی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ بندہ 400-300 کی ٹکٹ لے کے بندہ ڈرامہ دیکھ لے. لیکن اس میں سیاسی صورتحال جو سی ہے کہ کوئی ملک کے لیے یا کوئی ایسی بات وہ اس پلیٹ فارم کے اوپر کوئی بھی نہیں کرتا. تو ہم لوگ ایسا پلیٹ فارم چاہتے ہیں جہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک نیا بندہ ہے کہ جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ 15 سال سے وہ سیاست میں آ رہے ہیں، عمران خان صاحب سیاست میں آ رہے ہیں، لیکن ان کے پاس ایکسپیرینس تو نہیں ہے. ایکسپیرینس پرسن جو سے ہیں وہ تو میاں نواز شریف فیملی ہے یا ان کے جو سے آگے بردرز جو سے کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے سینئر جو ہے، جو ہمارے سے پہلے یو ای ٹی سے نکل کے گئے ہیں، آج تک 5-6 سال ان کو ہو گئے ہیں، ان کو کوئی جاب نہیں ملی، کوئی مارکیٹ سے کوئی اور چیزیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی یونیورسٹی میں کتنے کو ایسے اسٹوڈنٹ ہوں گے کہ جو الیکشن میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے؟ میرا خیال ہے کہ ووٹنگ کے اوپر تو کوئی بندہ بات نہیں کرتا، لیکن اس کے اوپر ضرور بندہ بات کرتا ہے کہ ہم دیکھیں گے جب الیکشن آئیں گے. ابھی تو ہم لوگ اسٹار میں اس کو دیکھ رہے ہیں. ابھی ابرار الحق کو بھی ساتھ لگا دیا، تو سارے جتنے بھی سنگر ہیں ان کو ساتھ ملا کے کوئی سیاست تو نہیں کی جا سکتی نا. اس میں تو صرف اور صرف اب ہم اوور آل ہی دیکھتے جائیں تو ہر جلسہ ہی ان کا جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ سے بڑھ کے آ رہی ہے. آپ سندھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ نے ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا. کراچی میں بھی ایک جلسہ ہوا تھا پی ٹی آئی کا، اس میں بھی اسی طرح میوزک اور گلوکار اس میں موجود تھے جنہوں نے لوگوں کو انٹرٹین کیا. آپ کیا کہتے ہیں کہ اس جلسے میں اور لاہور کے جلسے میں جو لوگ پہنچے وہ کس وجہ سے، کیا وہ عمران خان کی محبت میں پہنچی یا میوزک سننے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کی طرف، آپ کے اس شو کی حساب سے جو مجھے یہاں پر دعوت دی گئی ہے، میں اس کے لیے آپ کا بہت شکر گزار ہوں. دیکھیں جناب، جو کراچی میں جلسہ ہوا تھا وہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں تھا، وہ ایک میوزیکل شو تھا جو دیکھنے کے لیے کراچی والے تو پہنچ گئے، لیکن اندرون سندھ سے وہاں پر جناب گاڑیاں بھیجی جا رہی ہیں، کروڑوں روپے ٹرانسپورٹوں پہ خرچ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد جب وہاں پر وہ لوگ آ رہے ہیں تو فی بندے کو یعنی کہ 500-500 ہزار روپے کے حساب سے ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں. میں سمجھا نہیں آپ کی بات.
जनाब, इनको जो बंदे अंदरून सिंध से ट्रांसपोर्टों में भरकर लाए गए, वो बाकायदा उनको 500 यानी कि हल्के के हिसाब से, कोई हल्का है उसको 500 के हिसाब से फी बंदा, कोई हल्का है उसको 100 रुपए के हिसाब से फी बंदा, ठीक है वो। और बाकायदा हमारे पास इसका प्रूफ है, मैं आपको ये बिल्कुल प्रूफ कर सकता हूँ, हमारे पास इसके पूरे हमने क्लिप रखे हुए हैं, तो वो उनको दिए गए। अब देखें, एक सिंध तो ऑलरेडी पहले ही आधी सिंध तो खत्म हो चुकी है, ठीक है, वो गर्क हो चुकी है, उस पर अल्लाह ताला की तरफ से ये जो फ्लड आया उसने पूरे का पूरा सिंध तबाह कर दिया है, ठीक है। और ऊपर से वहां पर अगर एक गरीब बंदे को मिल जाएगा, एक दिन सारा दिन वो फारिग बैठा हुआ है, बेरोजगार बंदा है, उसको एक जलसा सिर्फ घूम के आने से 500 रुपया मिल जाता है, उसको क्या तकलीफ है जाने में। सही। इस तरह उस जलसे में जो है इकट्ठे किए गए। रही बात जब तक कि ये इमरान खान साहब कहते हैं जी यूथ मेरे साथ है, यूथ मेरे साथ है, मैं देखिए ना सिंध यूनिवर्सिटी हैदराबाद का तालिब इल्म हूँ, ठीक है, मुझे सिर्फ यूथ उनके साथ उनके स्टेज प्रोग्राम तक है। अच्छा जी। उन जितनी भी यूथ है ना उनके साथ उनके स्टेज प्रोग्राम तक है, जहां पर खुल्लम खुल्ला वो जनाब डांस हो रहा है। वो पहले तो यार लड़कियां डांस कर रही हैं, बहुत हमें शर्म आती है। इस मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया था, वो इस्लामी जमहूरिया आज कहाँ है? नहीं तो देखें जी, आप भी नौजवान हैं, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही। मैं इमरान खान साहब से ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि आपके थ्रू ही मैं उनको ये क्वेश्चन को, यार आप किस किस्म का इनकलाब लाना चाह रहे हो इस मुल्क में? क्या ऐसा इनकलाब कि लड़कियां कमर में दुपट्टे बांध कर रोडों पे डांस करें ढोलों की थापों पर? कहते हैं नजरिया नया जो है एक नई चेंज देंगे पाकिस्तान। हाँ, तो ये नया नजरिया है ना। आज का किस तरह चेंज देंगे वो? आज क्या वो पुराने लोग तो ये इतना बड़ा तो चेंज दे दिया, पूरे का पूरा अमेरिकन कानून वो यहाँ पर नाफिज कर रहे हैं। और मुझे एक बात बताएं, जो बंदा कल ज़कात और उशर के पैसे इकट्ठे करा था एक शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए, ठीक है, जिसको एक गरीबों के लिए बिल्कुल मुफ्त बनाया गया, आज किसी गरीब की वहां पर पांव की मट्टी लग जाए तो उसको जूते मार के गेट से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये आपके कहने का मतलब ये हुआ कि वहाँ गरीबों का इलाज फ्री नहीं होता? नहीं जनाब, कोई इलाज वहां पे फ्री नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, आप क्या कहते हैं जी जदुल मसूद साहब? जी जी, आप लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर पॉलिटिकल साइंस किया है MA, तो आपने वहाँ के लोगों के हालात देखे होंगे, आपको वो वक्त याद होगा पंजाब यूनिवर्सिटी में जब इमरान खान गए तो इनको कमरे में बंद कर दिया गया था। आज वो कहते हैं कि पंजाब के नौजवान जो है ना वो उनके साथ हैं, क्या ये सच है? जी बात ये है कि नौजवान जो है इस वक्त मैं समझता हूँ, खान साहब कहते हैं कि जी एक नया नजरिया दूंगा मैं, एक चेंज लाना चाह रहे हैं मुल्क में। तो वो मुल्क में चेंज किस तरह लेके आएंगे कि वही पुराने लोग, आजमाए हुए लोग जो हैं, लोटे जो हैं, मैं बल्कि ये कहूँगा मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक MNA थे जो चकवाल से जाली डिग्री की वजह से उनको रिजाइन जो करवाया गया और वो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। इसी तरह पुराने जितने इस्टेब्लिशमेंट के लोग जो हैं वो एक नया मोहरा तैयार कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट जो है, और वही लोग सारे उनके जमा हो रहे हैं, उनको इकट्ठे किया जा रहा है। उनको ये कह रहे हैं कि एक नजरिए पे, हमारे नजरिए पे वो सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, एक नजरिए पे। आपकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट क्या कहते हैं कि वो क्या इलेक्शन में इसको वोट देंगे या किसी और पे उनकी नजर है? नहीं, सब मेरा जो ख्याल है कि पाकिस्तान में जो हालात है इस वक्त जितने नाजुक दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले इतना मुश्किल वक्त यहाँ पे आया हो कभी भी। तो मेरा ये ख्याल है कि मसाइल के भंवर में फंसी हुई पाकिस्तान की कश्ती को अगर कोई निकाल सकता है यहाँ से तो वो सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, तो यहाँ से निकालेंगे। जी आप ताजा रहनुमा है मियाँ साहब, आप क्या कहते हैं जी? मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया और हमें मौका दिया। बात यह है कि मैं ताजर के हवाले से ये बात करूँगा कि आप मुल्क के पाकिस्तान के एक एक कोने में चले जाएं, सिंध से लेके कराची, कराची से हैदराबाद, वहाँ से आप बलोचिस्तान, पेशावर, आप जौन से पाकिस्तान के एक एक गली कूचे में चले हैं, किसी ताजर के चेहरे पे रौनक नहीं है। और आप जब मियां नवाज शरीफ साहब का दौर था तो हर ताजर खुशहाल था। मैं कहता हूँ ये जो हमारा ये मौजूदा ये जरदारी टोला है, जो ये मतलब कि एक इनकी ताजरों के लिए क्या पॉलिसी है, इन्होंने ताजरों के लिए किया क्या है? कराची में जब देखो बत्ता लेने के लिए ये बस मीडिया पे बात कुछ होती है कि जी वो बत्ता ले रहे हैं तो वो कुछ स्टेटमेंट देते हैं जी हम यूँ करेंगे। तो ये ताजरों के लिए हमारे ये जो इन्होंने ये 4 साल गुजारे हैं जरदारी टोले ने, इन्होंने किया क्या है? इन्होंने तो सारे दबा किए जी इन्होंने कोई जो है गवर्नमेंट का कोई
जो बाबर वान साहब हैं, जो अदलिया का एहतराम नहीं करते, अदलिया का एहतराम नहीं करते, अदलिया का एहतराम जो हमारा पाकिस्तान जो मुल्क है, इसके 112 ममालिक में इनके चैनल देखे जाते हैं, तो जो अब अदलिया का एहतराम नहीं करेंगे, वो अपने लीडर का या अपने मुल्क का एहतराम क्या करेंगे? ताजर तो बिल्कुल लूट के रह गया ना। लोड शेडिंग इतनी ज्यादा है, लाइट आती नहीं है, गैस है नहीं है हमारे घरों में, ऊपर से ये गैस के सिलेंडर जो हैं वो इतनी माएँ बहनें हमारी रोडों पे जा रही हैं, लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही हैं, लकड़ी है नहीं है हमारे मुल्क में, कोई चीज़ तो है नहीं है। अब किस तरह हम लोग इन लोगों को, नए लोगों को आगे हम लोग बाइट दें? और दूसरी बात, मेरे भाई ने थोड़ी देर पहले बात की कि एंटरटेनमेंट के हवाले से, ये तो फिर वही बात आ गई कि काफली का सारा टोला पीटीआई में जा रहा है। वो इस वजह से क्योंकि वो भूखे नस्लों का बिल भी टोटा था, वो भी मुशर्रफ साहब ने पास किया। नहीं पता, एक मिनट मेरे भाई, सिर में आप पहले इनके जो शो देख लें, ठीक है, पहले इनकी आप वो जो इन्होंने एमक्यूएम ने ये कर दिया, एमक्यूएम वो कलाशनकोफों वाली तोप है, मैं उनको साथ लेके नहीं चलना चाहता, मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद जब वो कराची में गए, नहीं मेरी बात सुना, जब वो हमने तो बात करनी ताजरों की ना। देखो इन लोगों ने मैं कहता हूँ ये इमरान खान साहब आ रहे हैं, चलो इस तरीके से साहब आ रही है, और भाई तेरे पास पॉलिसी क्या है? मैं इशरे का ताजर हूँ, ये इमरान खान इकट्ठा करने के लिए आए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुद बाजार में इनके साथ लग के एक एक दुकान पे चंदा इकट्ठा करके दिया। भी अच्छे काम नहीं करे, नो डाउट कि उन्होंने हॉस्पिटल बनाया, लेकिन उस हॉस्पिटल में मेरे जैसा बंदा भी नहीं जा सकता। देखिए जी, मुझे एक बात बता दें कि मुझे ये पूछना है कि जो आज 2-4 जलसे इन्होंने किए जिसपे करोड़ों रुपए आपके बकौल लग गए, एक बंदे को लाने में 500,000 रुपया जो है ना उसको दिया जा रहा है, हम ये पूछते हैं कि वो पैसा कहाँ से आया? क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा? आप इस मुल्क के शहरी हैं, कल का आने वाला मुस्तकबिल आपके हाथों में है सर। आप इससे क्या कहते हैं? बिल्कुल, वो पैसा जहाँ से आया वो पूरी दुनिया को पता है, वो हमारी यूथ को पता है। हम पढ़े लिखे नौजवान हैं, 24 आवर्स हम नेट यूज कर रहे हैं। आप उनकी नेट पे वेबसाइटें खोलें, यही इमरान खान खुद कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के लिए अमेरिका से पैसा लाऊंगा, और वो बाकायदा वहां पर लेने गया है, और वो पाकिस्तान के लिए नहीं आया, वो इनके जलसों के लिए आया, वो इनके ये जो स्टेज थिएटर ड्रामे हैं उनके लिए आया। इन सालों ने तो लूट मचा रखी है पाकिस्तान में। लेकिन मौजूदा मैं ये रहे हैं कि देखे जी यूथ मेरे साथ है, और भाई ये जो कल जब इलेक्शन होंगे, मैं मानता हूँ उनका लाहौर में, चलो जी हम लाहौरी हैं, उनका जलसा देखने ही गए, लेकिन कल जब होंगे इलेक्शन होंगे, तो मैं कहता हूँ हम लाहौर से देखेंगे। मैं ये मीडिया की हिसाब से मैं उनको ये कहता हूँ कि मुझे इमरान खान साहब लाहौर से एक सीट ही जीत गए। ये लोगों ने एक बार ऐसे जलसे बढ़े, ये सिर्फ ये आप बात लगे हुए हैं, हम लोग और हम तो ये कहेंगे कि ताजरों के लिए कुछ बेहतर किया जाए, और ताजरों के लिए ये बोला कि ताजरों का, और ये मुल्क बनाया ताजरों ने, और ताजर जो है मियां नवाज शरीफ को पसंद करते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब पे एतमाद करते हैं। आप देखिए यूं रुख ताजर भी आज कह रहा है कि वो मियां नवाज शरीफ को पसंद करता है, हाँ, स्टूडेंट भी आज कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ को पसंद करता है, हर तालिब इल्म, हर दुकानदार, हर बंदा इस वक्त पाकिस्तान का हर शहरी वो कह रहे हैं कि वो मियां नवाज शरीफ को पसंद करता है। तो मैं हैरान इस बात पे हूँ कि वो जो जलसे में जाते हैं, क्या वो सिर्फ पैसे के लालच में जाते हैं कि जब वहां जाएंगे तो या तो म्यूजिक सुन लेंगे या 500,000 रुपया जो है वो लेके आ जाएंगे? आप लोगों का बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, आपने हमारे मौजूद मेहमानों की बातें सुनी। ये इसमें नौजवान स्टूडेंट जो बात कर रहे हैं उसको हमें थोड़ा सा जो है ना इस पे डीपली सोचना भी चाहिए। सोचना क्या है कि इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, आज पाकिस्तान में हमारे दरवाजे पे हमारा मुस्तकबिल दस्तक दे रहा है कि मुझे रोक लो, वक्त गुजर गया तो वो दोबारा हाथ नहीं आएगा। मैं भी यही समझता हूँ कि इस वक्त अगर पाकिस्तान में पाकिस्तानियों से मुखलिस, इस मुल्क से मुखलिस कोई क़यादत है तो वो सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब की है। इस पे सोचिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।